Hello students, myself Pratima Tiwari. Today I am going to discuss about technology. Speaking about technology student, it has become an integral part of our life. काफी हद तक टेक्नोलॉजी ने हमें ट्रांसफॉर्म करके रख दिया है. It is not only helping in the growth of our life, but it has also simplified our life up to much more extent. It has made our life much more comfortable. Let's take an example of a simple device, that is mobile phone. Earlier, when mobile phone was invented, it was used only for two purposes. Those two purposes are either calling or texting in case of emergency. But nowadays, this mobile phone has become a multi-purpose devices in our life. Most of the people cannot spare a single day of their life without touching the technology. Now, speaking about technology, it has not even overlooked the biological field. मतलब टेक्नोलॉजी ने हमारे बायोलॉजिकल फील्ड को भी नजरअंदाज नहीं किया है. जब हम ये टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल मैकेनिज्म बायोलॉजिकल फील्ड में यूज करते हैं तो एक नया ब्रांच फॉर्म होता है बायोलॉजी में, एंड दैट ब्रांच इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी. Whatever number of technological mechanism or technical mechanism we use in biology, the main theme क्या है? The natural process carried out in the unit of our life, that is cell. मेरा कहने का मतलब है हम कितना भी टेक्नोलॉजी यूज कर ले हमारे बायोलॉजिकल फील्ड को एडवांस करने के लिए, बट जो मेन थीम होगा वो क्या होगा? The natural process working in the cell. So with the help of the concept of the natural process occurring in the cell, we are going to incorporate technology into the biological field. Now, we are going to study how it happens. Technology is such a broad spectrum, but still it is dependent on that natural process. So student, मैंने क्या कहा था कि हम कितना भी बायोटेक्नोलॉजी यूज कर ले बायोलॉजिकल फील्ड में, द मेन थिंग विल बी द नेचुरल प्रोसेस अकरिंग इनसाइड द सेल. So first we need to understand the meaning or the processes or the study of cell. Fine? Study of cell is known as cell biology. Now cell biology को एक दूसरा टर्म भी है जो आपको एग्जाम में लिखना है. That is known as cytology. So study of cell is also known as cytology, which is taught to you in 9th standard. 9th standard में आपको याद होगा टोटिपोटेंसी करके एक प्रोसेस था प्लांट में. फाइन, उसमें हम क्या करते थे, एक स्टेम या रूट के टिप्स में से थोड़े से टिश्यू निकालते थे और टेस्ट ट्यूब में कल्चर करके न्यू प्लांट्स ग्रो करते थे. लाइक हमें वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि पॉलिनेशन करे, ये करे, वो करे, तब प्लांट ग्रो होगा. विद द हेल्प ऑफ दैट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वी वर एबल टू ग्रो दैट प्लांट. सो दैट टिश्यू वाज नोन एज स्टेम सेल. सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर इज व्हाट इज साइटोलॉजी. Cytology is a study of cell or the study of the processes of the cell. This is cytology. Once we understand the processes of cell, that is how the process occurring inside the cell, we can manipulate according to our desire. और वो manipulation करने में कौन help करता है? Technology. So opening a new branch known as biotechnology. Now, in biotechnology, earlier the scientist was interested in cloning. जो पहला इवेंट हुआ था बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में वो था क्लोनिंग. सबको कॉपीज बनाने में काफी इंटरेस्ट आ रहा था साइंटिस्ट को. बट आफ्टर क्लोनिंग द थिंग विच दे केम टू नो, फाइन, द थिंग विच दे केम टू नो कि ये जो क्लोनिंग है वो किसकी वजह से हो रहा है? स्टेम सेल्स की वजह से हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है? स्टेम सेल्स की वजह से. फाइन, तो क्यों ना हम इस स्टेम सेल को और ब्रॉड स्पेक्ट्रम से यूज करें. So this is a statement in your textbook and it is asked in exams also. After cloning, which is the most important revolutionary event happened in biotechnology, that is stem cell research. So in the beginning of your chapter, we have to study detail about stem cell and later we are going to study about cloning. And पूरा chapter application of biotechnology का डिस्क्रिप्शन है. लाइक इन
एग्रीकल्चर फील्ड, एनिमल हस्बेंड्री फील्ड, कहाँ कहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी यूज हो सकता है, कितने हद तक, दैट इज मेंशन इन दिस चैप्टर. So I'm beginning with the concept of stem cell. So let's understand what is the meaning of stem cell. Fine. I will go from the scratch level. The scratch level says that the first cell, that is zygote. Zygote is formed by fusion of egg and sperm. पहले क्या होता है, एग एंड स्पर्म फ्यूज होता है तो क्या फॉर्म होता है, जाइगोट. दिस जाइगोट अंडरगो डिवीजन एंड रीडिवीजन. व्हाट इट अंडरगो, डिवीजन एंड रीडिवीजन. स्टूडेंट हम क्या समझ रहे हैं, स्टेम सेल किसे कहते हैं या स्टेम सेल फॉर्म कैसे होता है हमारी बॉडी में. फाइन. सो एग एंड स्पर्म फ्यूज होके फॉर्मिंग द जाइगोट. Zygote is undergoing division and redivision. It is forming a mass of cell. Fine, you can say it is forming a mass of cell. Exactly, if I have to say, it is a mass of 16 cell. And the term is not given in your textbook, but इसे कहते हैं morula. Fine, term ये आपके textbook में नहीं है, but इसे कहते हैं morula. कितना cell structure होता है ये, 16 cell structure होता है. Fine. अब ये 16 सेल स्ट्रक्चर बॉडी जो है मोरुला, फैम, आफ्टर 14th डे ऑफ कंसेप्शन, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 14th डे ये मोरुला 14th डे पे अंडरगो डिफरेंशिएशन. व्हाट इट अंडरगो, डिफरेंशिएशन. फैम. अब ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, अगर आपके टर्म में कहा जाए या सिंपल टर्म में कहा जाए तो इसे कहते हैं मॉडिफिकेशन. So these cells undergo modification to form varieties of cells. What they form? Varieties of cells. Fine. For example, अगर ये लीवर का सेल बना रहा है तो उसे क्या कहेंगे, हिपैटोसाइट्स. बोन का सेल बना रहा है तो ऑस्टियोसाइट्स. एंड ब्रेन का, यू मस्ट बी नोइंग इट, वेरी सिंपल, दैट इज न्यूरॉन्स. सो अगेन आई एम रिपीटिंग, एग एंड ओवम फ्यूज, सॉरी, ओवम एंड स्पर्म फ्यूज होता है, जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट अंडरगो डिवीजन एंड रीडिवीजन टू फॉर्म मोरुला. ईच एंड एवरी सेल इन द मोरुला इज अ स्टेम सेल. क्योंकि हर एक सेल, हर एक सिंगल सेल की एबिलिटी है, इट कैन फॉर्म 220 different types of cell. And those 220 different types of cell is a part of your body. Right? For example, जैसे मैंने बताया, लीवर का हिपैटोसाइट्स, बोन का ऑस्टियोसाइट्स एंड ब्रेन का न्यूरॉन्स. So these cells are stem cell. Now next thing which we have to understand, student, it is types of stem cell. Now जब भी हम types पढ़ते हैं तो categories बनाते हैं. Fine? And whenever we make categories, we need to know on what basis it had been formed. मतलब किस आधार पे ये दो categories, या फिर मैं किस basis पे बोल सकती हूँ कि these are the two categories of stem cell. That is on the basis of origin. Fine? Origin means कहाँ से हम इसको obtain करते हैं और procure करते हैं. So the first one is embryonic stem cell, and the second one is adult stem cell. एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का मीनिंग क्या होता है, हम इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज में से निकालते हैं. अब एम्ब्रियो क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ओवम एंड स्पर्म फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट. जाइगोट अंडरगो डिवीजन एंड रीडिवीजन टू फॉर्म मोरुला. मोरुला इज अ 16 सेल स्ट्रक्चर. 14th डे पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है. हर एक सेल मोरुला का क्या है, स्टेम सेल, क्योंकि हर एक सेल 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल बना सकता है. एंड उस प्रोसेस को बोलते हैं pluripotency. That is known as what? Pluripotency. What is meaning of pluripotency? One cell can differentiate to give much more varieties of cell. हमारे केस में one stem cell is giving 220 varieties of cell. That is known as pluri. Pluri means multiple. Potency. टोटीपोटेंसी प्लांट में होता है, हमारे में होता है प्लूरिपोटेंसी. So the types on the basis of origin. मोरुला के बाद क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज. सो दैट एम्ब्रियोनिक स्टेज में से जो हम लोग निकालते हैं सेल्स, जो स्टेम सेल्स निकालते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. अब एम्ब्रियो में से स्टूडेंट क्या क्या निकाल सकते हैं, आई मीन एम्ब्रियो के किस पार्ट में से वी कैन रिमूव द स्टेम सेल. दैट इज नंबर 1, अम्बिलिकल कॉर्ड.
फाइन, आपने अम्बिलिकल कॉर्ड का नाम तो सुना ही होगा. फाइन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? इट इज अ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टिंग मदर टू द बेबी और बेबी टू द मदर. So umbilical cord is a storage of stem cell. So if I'm preserving umbilical cord, it is embryonic stem cell. So this is the first example of embryonic stem cell. Second is blastocyst. What is second part? Blastocyst. ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है फैन? ब्लास्टोसिस्ट एक सिंपल स्ट्रक्चर है स्टूडेंट. जब ओवम एंड स्पर्म फ्यूज होता है, पहला सेल फॉर्म होता है जाइगोट, ये मैंने आपको बताया था. जाइगोट के बाद फॉर्म होता है 16 सेल स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं मोरुला. फाइन, यहां तक ये फैलोपियन ट्यूब में होता है. पर जैसे ये मोरुला 64 सेल का हो जाता है, मोर देन 64 सेल का हो जाता है, उसे कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट. उसके बाद बनता है एम्ब्रियो. फाइन, सो इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट का होता है. इम्प्लांटेशन मीन्स वुम में सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर आता है? ब्लास्टोसिस्ट. सो इफ आई एम रिमूविंग फ्यू सेल्स फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट, इट इज अगेन अ टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. Next, the third example of embryonic stem cell is cord blood. What is cord blood? Umbilical cord के अंदर जो blood होता है. So these are the three examples of embryonic stem cell. ये आपको याद रखना है. Next, speaking about adult stem cell. हमारी body, adult means once we are born. Fine? So once we are born and developed, like after the age of 11 and 12. फाइन, हमारी बॉडी में से भी कोई ऐसा पार्ट है जो डिफ्रेंशिएट हो के कुछ और फॉर्म कर सकता है? यस, देयर आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विच कंटेन स्टेम सेल. स्टेम सेल, अगेन आई एम रिपीटिंग, स्टेम सेल वो सेल होता है विच हैज अ पावर ऑफ डिफ्रेंशिएशन. डिफ्रेंशिएशन मतलब वो डिफ्रेंशिएट होके दूसरे पार्ट्स बना सकता है, मॉडिफाई. नाउ स्पीकिंग अबाउट अडल्ट, इन केस ऑफ अडल्ट द फर्स्ट एग्जांपल इज रेड बोन मैरो. फाइन, आपने सुना होगा जिसको भी ब्लड कैंसर होता है, अल्टीमेट केसेस में मतलब स्टेजेस में, फाइनल स्टेजेस में अगर उसे बचाना होता है तो बोन मैरो डोनेट करना पड़ता है. व्हाई बोन मैरो इज डोनेटेड? बिकॉज बोन मैरो हैज अ पावर ऑफ रीजनरेटिंग द सेल्स. That's why red bone marrow is said to be having a stem cell, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट होके RBC सेल्स बना सकता है एंड कैंसर पेशेंट को वो ब्लड मिल सकता है. सो कैंसर पेशेंट को अगर क्विक ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए रेड बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है. नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड एग्जाम्पल, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. फाइन, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. व्हाट इज एडिपोज? यू ऑल मस्ट बी नोइंग. Adipose is nothing but a kind of tissue which stores fat globules into it. Fine. It is also having a stem cell. Just remember this thing. And the third and the most important, blood. Blood also consists of stem cells. That's why we donate blood. Fine. Okay. So these are the examples of adult stem cell and these are the examples of embryonic stem cell. Now question arises, student. अगर ये स्टेम सेल्स हम निकालते हैं किसी की बॉडी में से, तो इसे प्रिजर्व कहां पे करते हैं? यस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो स्टेम सेल इज प्रिजर्व्ड. इट इज प्रिजर्व्ड इन स्टेराइल वायल्स. किसमें प्रिजर्व करते हैं? स्टेराइल वायल्स में प्रिजर्व करते हैं. फाइन, यू कैन सी द पिक्चर ओवर देयर. स्टेराइल वायल्स में वो होता क्या है? छोटा सा ग्लास बॉटल होता है. स्टेराइल क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि इसे अल्कोहल से ट्रीट किया जाता है. अल्कोहल क्यों? क्योंकि अल्कोहल डिस्ट्रॉय द जर्म्स. फाइन, सो स्टेराइल वायल्स का मीनिंग होता है द स्मॉल ग्लास बॉटल इज फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन. उसके ऊपर कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म्स नहीं है, इसे कहते हैं स्टेराइल वायल्स. फाइन, नाउ दिस स्टेराइल वायल्स इज प्रिजर्व फर्दर. तो स्टेराइल वायल्स में हम लोग स्टेम सेल्स रख देते हैं. उसके बाद इस वायल्स को कहां पे रखा जाता है? इट इज पुट इनटू लिक्विड नाइट्रोजन. किसमें रखते हैं इसे? लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं. बट स्टूडेंट, यू ऑल मस्ट बी नोइंग, अगर टेम्परेचर मेंटेन ना किया जाए तो ये खराब भी हो सकता है. क्यों खराब हो सकता है? यस, बिकॉज स्टेम सेल ऑर्गेनिक है, सड़ने के चांसेस है. तो हमें इसमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है. सो दिस लिक्विड टेम्परेचर, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कहां से कहां होना चाहिए? -135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस.
तो इस रेंज में हम स्टेम सेल को प्रिजर्व करते हैं एंड द कंटेनर इज नोन एज स्टेराइल वायर्स। अब मैंने बता दिया स्टूडेंट कि स्टेम सेल्स होता है, कहाँ से होता है, कैसे प्रिजर्व किया जाता है, किस टाइप के होते हैं, बट अभी भी क्वेश्चन यही रह गया है कि स्टेम सेल्स प्रिजर्व क्यों किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल्स, हम इसे यूज कहाँ पे करते हैं। बट उससे पहले एक वेरी सिंपल थिंग, बेस्ट स्टेम सेल कौन सा होता है, राइट? क्योंकि हम कभी भी कोई चीज भी लेने जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि बेस्ट कौन सा होता है। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई रिलेटेड टू स्टेम सेल, इसमें से बेस्ट वाला कौन सा होता है। सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू विच इज द बेस्ट वन। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर कौन सा है? दिस इज मोरुला। ये वाला स्ट्रक्चर मोरुला, डोंट फॉरगेट मोरुला। मोरुला के अंदर सारे सेल्स स्टेम सेल्स हैं, फाइन। बट मोरुला जब फॉर्म हो रहा होता है, कैसे फॉर्म हो रहा है मोरुला? डिविजन एंड रिडिविजन ऑफ जाइगोट। So when the morula is getting formed from first day, let's take an example, a lady is pregnant, fine? और वो pregnant होती है जिस day को, उसके ठीक 5th या 7th day को, fine? After conceiving, this is a term used in your textbook, fine? After conception of a pregnant lady on the 5th or 7th day, fine? जो सेल मिलता है that is the best stem cell. फाइन। सो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए विच इज द बेस्ट स्टेम सेल, सो दिस वन इज बेस्ट स्टेम सेल। अब इसकी खासियत बता देती हूं मैं, फाइन। अगर आप इस सेल को बाहर निकालोगे, 5th to 7th डे वाला सेल, और इसे हमने लैब में रख दिया, फाइन, लैब में रख के सर्टेन केमिकल्स कंडीशंस मेंटेन किया, तो इस सेल में से हम बॉडी का कोई भी ऑर्गन बना सकते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक एक सेल हमें मिल गया तो हम बॉडी, ह्यूमन बॉडी बाहर लैब में ही बना सकते हैं। दिस इज द पावर ऑफ स्टेम सेल एंड डोंट फॉरगेट, ऐसा कैसे कर सकते हैं हम? बिकॉज स्टेम सेल हैज अ पावर ऑफ डिफरेंशिएशन। कौन सा पावर है इसमें? डिफरेंशिएशन। एंड डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है हमारे टर्म में? मॉडिफिकेशन। सो द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ स्टेम सेल। नाउ लेट्स